Hello students, today we start chapter number 4, that is practical geometry. Let us see introduction. You have learned how to draw triangles in class 7. We require 3 measurements of side and angles to draw a unique triangle. So हमने ऑलरेडी क्लास 7 में देख लिया कि ट्राइंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए क्या गिवन होता है, 3 साइड और एक एंगल गिवन होता है. बट हियर इन दिस चैप्टर we learn how to draw quadrilateral. Since 3 measurements were enough to draw a triangle, a natural question arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique 4-sided closed figure, namely a quadrilateral. तो जैसे कि हमें पता है कि ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए 3 मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर, दैट मीन्स कि कौन सी फिगर है 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ कैन वी ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल or different types of quadrilateral like parallelogram, rhombus, rectangle and square. Let us see how to constructing a quadrilateral. So firstly the word is quadrilateral. So we already aware about this word. We already learned about this word in the last chapter. What is quadrilateral? So 4-sided figure is known as a quadrilateral, and the types of quadrilateral are rectangle, square, rhombus and parallelogram. So these are the types of the quadrilateral. Now how can we construct quadrilateral? That we have to see in this chapter. So firstly, when the length of 4 sides and a diagonal are given. See here we have to construct a quadrilateral, but in that case what the measurements are given? The measurements are length of 4 sides and diagonal are given. So in this case how can we construct? Let's check it with help of one example. So let's suppose we have to draw a quadrilateral, that is A, B, C and D. So here AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter and AC is equal to 7 centimeter. So in this case what we will do first? First we draw a rough sketch with the help of the visualizing quadrilateral. So हम ये जो मेजरमेंट गिवन है साइड के, उसके बेसिस पर से हम एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. ओके, सो लेट्स सपोज वी ड्रॉ like this and we give it name as A, B, C and D. Now AB is equal to 4.5. So here AB is equal to 4.5 centimeter. BC is equal to 5.5. So BC is equal to 5.5 centimeter. CD is equal to 4 centimeter. So CD is equal to 4 centimeter. AD is equal to 6 centimeter. So here AD is equal to 6 centimeter. And diagonal AC. So here we draw diagonal AC, that is given 7 centimeter. So on the basis of given measurement, first we draw a rough sketch. Now what we do next? Now we draw a quadrilateral exactly on the basis of the given measurement. So how can we do that? Let's check it. So firstly, with the help of scale and compass we start doing quadrilateral. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? See here, for the ease of the sketch always take diagonal side first. So here in this figure, which is the diagonal side? AC is the diagonal side. So AC is 7 centimeter. So what we have to do is, firstly we take
AC, that is 7 centimeters. So with the help of scale and compass, we set the measurement, that is 7 centimeters. So like this way, see, यहाँ पे हो गया AC is equal to 7 centimeter. But first we have taken the diagonal, so we can simply draw it AC as 7 centimeter. So यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 to 7. ओके, सो ये हो गया आपका मेजरमेंट 1 to 7. तो ये हो गया आपका AC. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं AC कहाँ पे है, इस तरीके से है. ओके, सो अभी हमने डायगोनल AC को हमने क्या कर लिया है, हमने बेस ले लिया है. ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी ड्रॉ AB. तो AB कितना है, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ AB? AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे यहाँ पे सपोज ये वाली फिगर को यहाँ पे डायगोनल AC है. ओके, तो मैंने डायगोनल को मैंने बेस बना लिया है. सो यहाँ पे AC के सपोज मैं AC को बेस बना लूँ लाइक दिस वे, तो AC के ऊपर आएगा D और AC के नीचे आएगा B. दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे जो एंगल मिलेगा अपर साइड वो होगा मेरा D और नीचे के साइड मिलेगा वो होगा मेरा B. अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट लेते जाएंगे. सो फर्स्ट वन इज AB. तो AB कितना है, AB इज 4.5 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास वी टेक द मेजरमेंट 4.5. सो हियर exact 4.5. नाउ व्हाट वी डू इज, AB कहाँ पे है, AB. सो AB कहाँ पे आएगा, नीचे के साइड. तो हम क्या करेंगे, निडल को रखेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ A और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ आर्क. एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नीचे के साइड पे, बिकॉज B कहाँ पे आएगा, हमारा लोअर साइड पे. नाउ क्या है, BC इज 5.5 सेंटीमीटर. ओके, सो BC मीन्स यहाँ पे हो जाएगा CB. तो वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर. तो अगेन हम क्या करेंगे, वी पुट निडल ऑन द स्केल और वहाँ से एक्सटेंड करेंगे पेंसिल पॉइंट को अप टू 5.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हो गया हमारा एग्जैक्ट स्केल हो गया C 5.5 सेंटीमीटर. ओके, अभी यहाँ पे हम ऐसे भी इसको ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे रख के भी पॉइंट को लेके यहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे 5.5 तक. तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेट मेजरमेंट. ये आ गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, BC गिवन है तो हम यहाँ से नहीं लेंगे. ऑलवेज ख्याल रखना है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिला है. हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, C है. सो हम यहाँ से C से हम आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन दी लोअर साइड और वो क्या होगा, वो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा. ये B वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट पे दोनों आर्क है वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा B पॉइंट. सिमिलरली अपर साइड पे करेंगे. सो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या गिवन है, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हमने स्केल रख दिया है. नाउ मेजरमेंट ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का. तो हो गया हमारा ये 4 सेंटीमीटर. ओके, अभी क्या है, CD है 4 सेंटीमीटर, CD. सो क्या होगा, यहाँ से C से D तक का 4 सेंटीमीटर. तो निडल को प्लेस करेंगे पॉइंट C पे और देन वी ड्रॉ वन आर्क ऑन द अपर साइड. नेक्स्ट इज AD. AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो अगेन टेक द मेजरमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया और 6 तक पेंसिल को एक्सटेंड कर लेंगे. सो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगेन एक पॉइंट पर निडल रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे और वो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हियर
ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। सो नाउ लास्ट पे हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ए से डी को ज्वाइन करेंगे, ए टू डी, फिर बी टू सी ज्वाइन कर लेंगे, बी टू सी, देन सी टू डी, और हो जाएगा ए टू बी। जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट तक हमें को ड्रॉ करना है लाइन। सो ये हमने कर दिया ए टू बी। तो ये हो गया हमारा quadrilateral A, B, C and D. So by this way we can easily draw quadrilateral with the help of scale, pencil and compass. Always keep in mind कि जब भी हमको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, so first what we have to do is first we have to draw a rough sketch and on the basis of that we will draw fair sketch. Now let's see how to write steps for the construction of quadrilateral. So यहाँ पे हमने पार्ट 1 में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब इसके स्टेप्स कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, हम जो करते जा रहे हैं स्टेप वही स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे। फॉर द ईजनेस आप क्या कर सकते हो, आप जब भी ड्रॉ करते हो उसके साथ ही लिख सकते हो, तो बीच में मिस्टेक ना आए। तो सबसे पहले क्या किया था हमने डायगोनल ड्रॉ किया था ए सी। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज फ्रॉम ए मार्क एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो ए से हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर मार्क ड्रॉ किया था। एंड फ्रॉम मार्क सी हमको और एक आर्क ड्रॉ करना है, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। ओके तो हमने क्या किया था, ए पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया और सी पर रख के अगेन 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज लेट द टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। तो ये दो आर्क है जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट डी। नाउ फोर्थ स्टेप इज जॉइन ए डी एंड सी डी। तो ये ए डी और सी डी को जॉइन करके हमको ये ट्राइंगल बनाना है। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ए मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमको ए के पॉइंट रख के क्या करना है, वन आर्क ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का। एंड फ्रॉम सी मेक एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। और लास्ट में सी के ऊपर निडल रख के क्या करना है, 5.5 का एक आर्क ड्रॉ करना है। और वो आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे कि जो हमने पहले वाला आर्क ड्रॉ किया उसको इंटरसेक्ट करे, इस टाइप से हमें ये लास्ट वाला आर्क ड्रॉ करना है। देन लेट द टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो ये दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया पॉइंट बी। एंड जॉइन ए बी एंड सी बी। तो लास्ट में हमने क्या किया था, ए बी और सी बी ये दोनों पॉइंट है उसको हमने क्या किया था, जॉइन किया था। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो यहाँ पे हम लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, thus the quadrilateral ABCD is given. So by this way we can write down the steps of the how to construct quadrilateral. Always keep in mind कि हम जब भी quadrilateral को ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ साथ स्टेप्स भी लिखना नेसेसरी है। सो ये हमने क्वेश्चन 1 के स्टेप्स लिख लिए। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 को आपको ड्रॉ भी करना है और उसके रिलेटेड स्टेप्स भी लिखने हैं। In exercise number 4.1, question number 3 is we have to construct parallelogram
MORE, where OR is equal to 6 centimeter, RE is equal to 4.5 centimeter, EO is equal to 7.5 centimeter. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ऑलरेडी दो साइड और एक डायगोनल दिया गया है. सो हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मेजरमेंट. Let's suppose given figure is of parallelogram MOR, MORE. Now OR is equal to 6 centimeter, RE is equal to 4.5 centimeter, and EO, that means की diagonal EO is equal to 7.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल कितनी साइड गिवन है, 2 साइड और 1 डायगोनल का मेजरमेंट दिया है. अभी एक साइड, दैट मीन्स कि 2 साइड है वो रिमेनिंग है. बट हियर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से टाइप का है, पैरेललोग्राम का. सो वी ऑलरेडी सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन द लास्ट चैप्टर कि पैरेललोग्राम है उनकी जो लेंथ है, ऑपोजिट साइड की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. सो दैट मीन्स कि ER है वो 4.5 है, तो MO होगा वो भी कितना होगा, 4.5 होगा. और RO है दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स कि उसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, EM, तो वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल MORE is a parallelogram. Therefore, the length of opposite sides are equal. Therefore, RE is equal to MO is equal to 4.5 सेंटीमीटर. और दूसरा क्या हो जाएगा, OR is equal to ME is equal to 6 सेंटीमीटर. नाउ अभी हमको 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ पता चल गई. अब हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल को बेस बनाएंगे. तो डायगोनल क्या है, EO है, और EO कितना गिवन है, 7.5 सेंटीमीटर. तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डायगोनल है 7.5 उसको ड्रॉ कर लेते हैं. सो हियर यहाँ से 7.5 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा. सो ओके, तो ये हो गया हमारा EO डायगोनल. नाउ अभी ये हमारा क्या हो गया है, डायगोनल हो गया है. तो ये EO के ऊपर क्या आ जाएगा, EO के ऊपर सपोज मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R और नीचे आ जाएगा M. तो यहाँ पे आ जाएगा R और यहाँ पे आ जाएगा M. तो अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इसके बेसिस पर से हम मेज़रमेंट को लेके ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले OR कितना है, 6 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेंगे. कैसे लेंगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सब में देखा. विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल 6 सेंटीमीटर. सी हियर एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर हो गया है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, OR है दैट मीन्स कि O से पॉइंट O से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे अपर साइड में. फिर नेक्स्ट वन इज RE कितना है, 4.5 सेंटीमीटर. सो अगेन फिर से सी
यहाँ पे ओ आर 6 सेंटीमीटर है, ओके, ओ आर 6 सेंटीमीटर है और एम ई भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमने ऑलरेडी कंपास को सेट किया है 6 सेंटीमीटर के मेजरमेंट में और दो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ओ आर कर दिया, नाउ कौन सी कर लेंगे, एम ई कर लेंगे। सो दैट मीन्स कि एम ई मीन्स ई, यहाँ से ई लेंगे, ई टू एम। अभी यहाँ पे हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, एम पॉइंट। तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। हम क्या करेंगे, निडल को पुट करेंगे ऑन द ई पॉइंट और वहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे लोअर सरफेस पर। सो ये हो गया हमारा ई एम। नाउ अभी हमारा क्या होगा, आर ई इज इक्वल टू 4.5। तो अगेन मेजरमेंट ले लेते हैं 4.5। सो यह 4.5 हो गया, एग्जैक्ट 4.5। सो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ई से एक आर ड्रॉ करेंगे ऑन दी अपर साइड और सिमिलरली क्या करेंगे, ये हमने क्या किया है, आर ई किया है, दैट मीन्स कि ई आर किया है। अभी आर ई इज इक्वल टू क्या था, एम ओ, वो भी कितना है 4.5, दैट मीन्स कि हम ओ से एम पर भी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे लोअर साइड पे। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटर। अभी यहाँ पे ये दो आर्क है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा आर और दिस पॉइंट इज एम। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली विद द हेल्प ऑफ स्केल वो पॉइंट को हम आर पॉइंट को ई से कनेक्ट कर लेंगे, ओ को कनेक्ट कर लेंगे एम पॉइंट से, आर को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट आर टू ओ एंड in last connect E point to point M, point E to point M। so ये हो गया हमारा मोर, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया M O R और E। so ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल जो हमें पूछा गया है विद दी, ये हमको मेजरमेंट है वो देख के। सी हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो ड्रॉ किया है वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे, तो यहाँ पे ओ आर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि ओ आर क्या हमारा रियली 6 सेंटीमीटर हो रहा है। सी हियर एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू आर, देख सकते हो आप, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली क्या है, दूसरा कौन सा है, ओ आर इज इक्वल टू एम ई। सो एम ई कहाँ पे है, ये वाला है। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं, एम टू ई। अगेन ये भी कितना है, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। सी ये भी हमारा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 0 से यहाँ हो गया 6, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। ये कितना है, आर ई है 4.5। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं आर ई। सी ये भी हमारा कैसा है, एग्जैक्ट 4.5 है। ये हो गया 4 और ऊपर ये 5 पॉइंट्स है। सो ये भी हमारा एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है 4.5। और सिमिलरली एम ओ है, तो एम ओ भी कितना है, एम ओ भी है सी, दैट इज अगेन exact 4.5 centimeter. Okay, so by this way we can also cross check whether we draw a quadrilateral with the exact value or not. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर हम उसको विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल उसको जो गिवन वैल्यू है उसके बेसिस पर से ड्रॉ करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू गिवन है और हमने जो ड्रॉ किया है उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक कर लेंगे कि जो हमको लेंथ मिल रही है, जो हमको विड्थ गिवन है वो ही उतने ही सेंटीमीटर का ड्रॉ हुआ है या उससे कम या ज़्यादा हुआ है। सो बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ अ
quadrilateral. Now fourth one is we have to draw rhombus BEST, BEST. So हम क्या करेंगे, ये आपको होमवर्क में करना है, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. सी हियर, क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा टाइप है, रोम्बस का. सो रोम्बस में क्या होता है, वी ऑलरेडी नो कि रोम्बस में जो साइड होती है, सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर दिया है, BES और T. सो BE कितना है 4.5 और ET क्या है, डायगोनल है, दैट इज 6. तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, BE गिवन है, BE है 4.5, दैट मीन्स कि सारी साइड होगी वो क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर. बिकॉज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus वी ऑलरेडी लर्न दैट all the sides of rhombus are equal. So here the single side BE is given, that is 4.5 centimeter, 4.5 centimeter. Therefore remaining all sides are 4.5 सेंटीमीटर. अभी आपको पता चल गया डायगोनल गिवन है, 4 साइड गिवन है, तो उसके बेसिस पर से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डायगोनल को बेस बना के देन वी विल ड्रॉ अदर साइड स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो आपको ये पोर्शन है वो होमवर्क में करना है. सी हियर हमने एक्सरसाइज 4.1 में ये जो फर्स्ट वन किया था क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो आपका था क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 है दैट वी ऑलरेडी डू. क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने कर दिया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क.